अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं अतहर अदील। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। दोबारा जहारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआ से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। अल्लाह और कौम की मदद से पाक सरजमीन का एक एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The battle-hardened army, which has fought for over 2 decades in the sub-conventional domain, has successfully displayed its capabilities in conventional domain as well by delivering a swift and decisive blow to the adversary. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान और चीन को उन प्रॉक्सीज पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने PMA में पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर खाक में मिला देंगे। Failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. Like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. Rest assured that Pakistan is a peace-loving nation and shall ensure peace within and peace without. पाकिस्तान का आला सतह वफ्द आज दोहा में अफगान तालिबान रजीम के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आला सतह वफ्द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार से दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बातचीत होगी। पाक अफगान सरहद पुरअमन और इस्तेहकाम की बहाली के इक़दामात पर भी गुफ्तगू होगी।
पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान तवक्को रखता है अफगान तालिबान हुकाम आलमी बरादरी से किए वादों की पासदारी करेंगे। पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए काबिल तस्दीक कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान कतर की मुसाहलती कोशिशों को सराहता है। उम्मीद है ये मुज़ाकरात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द आज दोहा में अफगान तालिबान रजीम के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आला सतह वफ्द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार से दहशत गर्दी के फौरी खात्मे पर बातचीत होगी। पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम की बहाली के इक़दामात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान ने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहदी पट्टी में ख़ारजे गुल बहादुर के कैंप को निशाना बनाया। 48 घंटे तवील जंग बंदी के दौरान अफगानिस्तान में मुतहरिक खवारिज ने बार बार पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमले की कोशिशें की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज को मौसर अंदाज में पसपा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान कहा ख़ारजे गुल बहादुर के अनासर ने शुमाली वज़ीरिस्तान में गाड़ी बम हमला भी किया। हमले में शहरियों और एक फ़ौजी ने शहादत को कबूल किया। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता शब ख़ारजे गुल बहादुर के खिलाफ स्ट्राइक्स में कम अज़ कम 60 से 70 खवारिज और उनकी क़यादत को जहन्नुम वासिल किया गया। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहदी पट्टी में ख़ारजे गुल बहादुर के कैंप को निशाना बनाया है। हम अब मज़ीद शहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। कोई हमारे खिलाफ जाहिरियत करेगा तो उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी बंद की जाए। PTI एक कल्ट है, मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इन्हें दहशत गर्दी की हिमायत के बजाय रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। तक पाबंदी का तलक है, उसके लिए तो प्राइमा फेसी एविडेंस जो है वो मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है, लेकिन एविडेंस मौजूद है और इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट जो है वो जो फैसला करेगी। अगर पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जो है वो अप्रूव होती है, जिनका आगाज़ ही जो है वो मारे जाने से शुरू होता है, तो उनके साथ किस किस्म की जो है वो बात हो सकती है। ये एक कल्ट है और ये एक ऐसा टोला है कि जो मुल्क में इंतशार चाहता है, मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में अनारकी चाहता है। अनारकी और अफरा तफरी की हर कोशिश को जो वो एंडोर्स करते हैं। जिस तरफ से भी रियासत के ऊपर किसी किस्म का कोई वार होता है वो उसको एंडोर्स करते हैं। ये रवैया उनका गलत है। शहीद बीबी गरीब की आवाज़ थी। बेनज़ीर भुट्टो ने इंतहा पसंदों और आमिर का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानह कारसाज के शोहदा की याद में तकरीब से खिताब। कहा 2007 में कारसाज के मकाम पर काफिले पर खुदकुश हमला हुआ था। की तारीख में बहुत से ऐसे वाक़या हुए हैं जो इस मुल्क के कौमी ट्रेजेडीज रहे हैं। उन कौमी ट्रेजेडीज में से एक ये हमारा 18 अक्टूबर का कारसाज का वाक़या है, जो मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि इस मुल्क के खिलाफ, हमारे वफाक के खिलाफ एक साजिश था। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप कह रहे हैं, उस इंसिडेंट का ऐसे कोई एस्पेक्ट्स है जिस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वैसे ही इस मुल्क में होते आ रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब में स्मोक गन्स का कामयाब तजर्बा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में स्मोक गन के इस्तेमाल के नताइज बहुत अच्छे रहे। स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में 70% कमी रिकॉर्ड हुई। कान्हा में AQI 666 से कम होकर 170 पर आ गया। स्मॉग गन्स के इस्तेमाल AQI में कमी का जदीद साइंसी माहौलियाती निगरानी के निज़ाम से तजिया और तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स को शाबाश। कहा पंजाब अवाम की खिदमत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब में स्मॉग गन्स का कामयाब तजर्बा।
यौम कोहे सुलेमान के मकाम धाना सर पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस कोयटा DI खान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, जिसके बायस बीसी मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुसाफिरों का कहना है कई घंटों से सड़क खुलने का मुंतज़िर हैं और उन्होंने ज़िला इंतजामिया से फौरी तौर पर मलबा हटाने और शाहराह की बहाली का मुतालबा किया। दूसरी जानिब ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मलबा हटाने और सड़क को बहाल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अलामा ताहिर अशरफी का कहना है पाकिस्तान चाहता है अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कामयाब हों। पहले भी अफगान भाइयों से यही कहा है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करने में मदद करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन मुज़ाकरात के ज़रिए इस खित्ते में अमन को दवाम बख्शें, यहाँ इस्तेहकाम आए। पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही है कि खित्ते में अमन हो। अफगानिस्तान के अमन को हम पाकिस्तान का अमन समझते हैं। अपने अफगान भाइयों से भी बार बार हमने यही गुजारिश की है, हर दौर में की है और हमेशा की है। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान जो हो रहे हैं, इनका मकसद अमन है। इनका मकसद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसको रोकना है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अब खून खराबा खत्म करने का वक्त आ गया है, यूक्रेन और रूस में जंगबंदी होनी चाहिए। अफ्रीकन मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करें। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के बाद ट्रंप से ज़ेलेंस्की की ये तीसरी मुलाकात हुई है। व्हाइट हाउस में अपने कपड़ों पर तनकीद का निशाना बनने वाले ज़ेलेंस्की की इस बार ट्रंप तारीफ किए बगैर ना रह सके। I think it looks beautiful in his jacket. Yeah. Is it beautiful? I hope people notice. It's actually very stylish. इस मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा प्यूटन और ज़ेलेंस्की जंगबंदी चाहते हैं और हमें इसे हासिल करना होगा। तवील फासले पर मार करने वाले टोमाहॉक मिसाइल यूक्रेन भेजने के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है टोमाहॉक के बगैर ही यूक्रेन रूस जंगबंदी में कामयाब होंगे। ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में ट्रंप ने लिखा दोनों फरीक खुद को फातेह करार दे और फैसला तारीख पर छोड़ दें। इससे पहले फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा वो उम्मीद रखते हैं कि सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाए। I hope to see Saudi Arabia go in, and I hope to see others go in. I think when Saudi Arabia goes in, everybody goes in, highly respected. And the Crown Prince, who's also the Prime Minister and the King in waiting, his father's such a wonderful man. He's still healthy and he's still very sharp. उधर व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा मशरिक वुस्ता की सूरत हाल यूक्रेन से कहीं ज्यादा पेचीदा थी, जिसे हल करने के लिए 59 ममालिक को राजी किया। बादशाह चार्ल्स के दबाव पर बरतानवी शहजादा एंड्रयू ने ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ दोम के बेटे होने के सबब शहजादा कहलाए जाने का लक़ब बरकरार रहेगा। बरतानवी शहजादा एंड्रयू का कहना है आइंदा अपने शाही खताबात इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।